And to top it all, universities like Nalanda, Takshashila, wherein all the students are coming from the global world and getting, studying in our country. So with that as a perspective, I'll just throw out some data points. Technology in agriculture, less than 2%. That is the state today. And we have spent almost about 75 years post-independence. We have enough research institutes, we have enough brains and capabilities, but the result is this. The yields, we heard in the morning, our yields are almost 50% of the world averages. So again, a poor state. Soil health, we have been doing testing. I will cover as to what we are doing. The soil health is poor. The soil organic carbon has come down to less than 0.5%. And as per Niti Aayog, we will be a water scarce nation by 2030. Now there are a lot of data points here also, because when we look at whole Indian picture, it can give you a different data. But when we look at the agricultural belt of India, it will give you a different data. And all of us know what is happening with weather events. And they have increased both in severity and frequency. So what we do, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को रूरल इंडिया में ले जाना चाहते हैं, और वो सॉल्यूशंस बहुत सारे वर्टिकल्स में हैं, लेकिन हमारी रीडिंग में एग्रीकल्चर उसका 90% पार्ट है. दैट इज व्हाई आवर फोकस एरिया इज प्रिसिशन एग्रीकल्चर, एंड आई कवर मेनली द सैटेलाइट क्रॉप मॉनिटरिंग पार्ट, बिकॉज दैट इज समथिंग इन विच वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट. लास्ट अबाउट 1 year we've been working on it, and that is one model which we found scalable. Because finally we are a startup, and as I say, for a startup, service first, revenue must, because without revenue we'll shut down. So with that as a background, satellite crop monitoring is what I'll cover, and our model is a 2-pillar model. भारत में कहीं भी अगर हमको काम करना है खेती बाड़ी के लिए, तो ट्रस्ट एंड ग्राउंड प्रेजेंस बहुत जरूरी है. वो हमारा पहला पिलर है, जिसको हमने स्मार्ट विलेज सेंटर का एक नाम दिया है. 15 से 20 गांव के बीच में एक सेंटर क्लस्टर का प्रपोजल है. 4000 से 5000 किसानों को हम उसमें सपोर्ट करेंगे. सो दैट इज अ एम. व्हाट विल दिस सेंटर डू? दिस सेंटर इज बेसिकली कवरिंग 15-20 विलेजेस. इट विल एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप. उद्यमिता को वो बढ़ावा देगा. जैसा कि आज हमने काफी लोगों से सुना कि अगर लोकल लोग ही मुझे खेती के बारे में बताएंगे तो मैं उनकी बात सुनूंगा. कोई बाहर से आके मुझे अगर खेती के बारे में बताएगा तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा. तो आइडिया क्या है इस SVC से, स्मार्ट विलेज सेंटर से, कि वहीं के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को ट्रेन किया जाए, और उनको ट्रेन करने के बाद उन्हीं के गांवों में उन्हीं से खेती बाड़ी के बारे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए. सो दैट इज आवर फर्स्ट पिलर. इट विल ऑल्सो एम्प्लॉय लोकल यूथ, and it will build trust. The most important part of building trust and the intellectual human capital, what we saw in the Gupta era. Now the second part, the technology. So what we have done is we have built a tech platform, and this tech platform is what is taking our services to the end user. And what we have discovered is that no website, no app can function in villages. So finally the delivery has to be done either through the message or through WhatsApp. Today the WhatsApp is there with every villager, and the only manner in which, if I am using a mobile and if I see a pop-up in my WhatsApp, then I can do an action on it. So when we say actionable information, the important part is how do I deliver the actionable information. Okay, now if I tell him open an app, go to this menu, you will find a message for yourself, and then take action, that will never happen. Now this is our reading. So our tech platform is basically integrating innovators, and our service delivery is through message or WhatsApp. Now bridging a digital divide, what we have been talking since morning, and we just hope that this tech platform will bridge this technical divide and integrate the multiple stakeholders. So roughly around 2000 square feet of area is what we are saying to make a smart village center. One is a technological demonstration area. हमने गाँवों में कस्टम हायरिंग सेंटर का नाम सुना होगा.
तो इस एरिया को हम कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में भी बनाना चाहते हैं, जिसमें कि जो भी चीजें किसान खरीद नहीं सकता है उसको आप हायरिंग के लिए यहाँ रख सकते हो। एक साइंस एंड टेक सपोर्ट सेंटर, अभी ये जो मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा जो हमने स्टैब्लिश किया है। आज की जो भी मेरे स्लाइड्स हैं, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज, अगर मैं आपको खेत का भी मैप दिखाऊंगा, वो जो ग्राउंड का मैप है जो हम मैपिंग कर चुके हैं वो मैं आपको मैप दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको ये जो डिजाइन दिखा रहा हूँ इसको हमने स्टैब्लिश किया है इंदौर के अपने ऑफिस में और इसी को हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो साइंस एंड टेक सपोर्ट सेंटर अराउंड 600 स्क्वायर फीट का होगा, जहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगेगी और जहां पर हम डायरेक्टली सैटेलाइट पिक्चर को दिखा पाएंगे। और बाकी जो आप नीचे देख रहे हैं सारे हमारे टेक सेंटर्स हैं। सो एग्रीटेक, as I said, is one of the vertical. You have finance, you have wash, renewable, RUTAC, assistive tech, government schemes and livelihood. So this is the scheme that what we are telling कि अगर हम इस तरीके से काम करें कि अगर हम ग्राउंड पे अपनी प्रेजेंस बना लें तो भले ही हमें खेती बाड़ी का कुछ काम करना है या किसी और भी टेक्नोलॉजी को गांव में भेजना है तो वो इजी हो जाएगा। Okay, the second pillar, what I explained earlier, is the tech platform. और इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को हमने बहुत कुछ सोचने के बाद बनाया है। इसको हमने ऐसा यूजेबल बनाया है कि किसान की ऑनबोर्डिंग से लेकर के और किसान को सर्विस डिलीवरी तक उसकी भाषा में एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर अगले 4 या 5 दिन में कोई एक्सट्रीम वेदर है तो उसके पास एक सिंगल मैसेज जाना चाहिए कि ये वेदर अलर्ट है। अगर हमें मल्टी स्पेक्ट्रल एनालिसिस से अगर कुछ उसके खेत में प्रॉब्लम दिख रही है तो सिंगल मैसेज आना चाहिए कि आपकी इस खेती में ये कीड़ा लगने की संभावना है, हिंदी में अगर वो मध्य प्रदेश का किसान है फॉर एग्जाम्पल। तो उस तरह से हमने ये टेक प्लेटफॉर्म बनाया है। इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। आई एम हियर टुमारो, इफ समबडी वांट्स टू सी अ डेमो आई कैन शो दैट। और ये टेक प्लेटफॉर्म को हमने एपीआईज इंटीग्रेट करके, इट इज वी कैन इंटीग्रेट विद ऑल सेंसर, वेदर इट इज सैटेलाइट, वेदर इट इज आईओटी, ड्रोन्स, व्हाटएवर इज पॉसिबल वी कैन इंटीग्रेट। Okay, now this is the model which we actually want to implement. This I'm talking about agri-tech. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड में जहां आपको अभी कर्सर दिख रहा है कि हमको सैटेलाइट से अपनी एफर्ट को बचाना है। सैटेलाइट से जो भी हम इमेजरी लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन सम इंडेक्सेस, जनरली वेजिटेशन इंडेक्स और क्लोरोफिल इंडेक्स और रेड एज इंडेक्स। उसकी एक्यूरेसी 60 से 70% है अगर मुझे बेजल डोज बनानी है। मैं सैटेलाइट इमेजरी पे बेजल डोज नहीं बना सकता हूं। तो सैटेलाइट इमेजरी से लेकिन मैं अपने आप को जो मेरा एफर्ट है सैम्पलिंग का वो रिड्यूस कर सकता हूं। तो फर्स्ट थिंग वी डू, वी ऑनबोर्ड द फार्मर, वी ऑनबोर्ड हिज क्रॉप फील्ड, द फील्ड क्रॉप वाइज। अगर उसके पास 10 एकड़ का खेत है, 5 एकड़ में गेहूं है, 5 एकड़ में चना है, तो 2 बार उसकी प्लॉटिंग होगी और 2 बार ऑनबोर्डिंग होगी, क्योंकि उसकी बेजल डोज 2 बार बनेगी अलग अलग क्रॉप की। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर हाउ इट इज डन ऑन ग्राउंड। देन वी डू द इरिगेशन डिजाइन। सैटेलाइट से हमको एलिवेशन और स्लोप मिल जाता है, कहां ऊंचा है कहां नीचा है, तो उसके हम इरिगेशन डिजाइन बनाते हैं। और फिर सोइंग के टाइम में उसको क्या क्या बेजल डोज तो हमने दे दी, तो सोइंग के टाइम में ये इंश्योर करना है कि वो बेजल डोज उसके खेत में जा रही है कि नहीं जा रही है। And the crop cycle. This is the most important part of the entire satellite crop monitoring. If we are using multispectral analysis, कि हमको पूरी क्रॉप साइकिल में उसको डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप विच इज हैविंग, अगर उसकी सोयाबीन की क्रॉप है तो 10 से 12 दिन में उसका एक क्रॉप मॉनिटरिंग के जो सारे इंडेक्स हैं उसका एक एनालिसिस जाना चाहिए। 1 महीने में उसको अगर मैं 4 बार रिपोर्ट दे रहा हूं तो चारों रिपोर्ट में अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो उसमें ये एनालिसिस हो जाना चाहिए 4 रिपोर्ट के बाद कि आपकी क्रॉप में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है या आपकी क्रॉप में डिप्रूवमेंट है या आपको अब ये न्यूट्रिएंट डालना चाहिए। सो दिस इज द होल क्रॉप साइकिल हाउ इट हैपेंस एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट कनेक्ट। नाउ सिंस वी आर एबल टू गेट द ईल्ड एंड द हार्वेस्ट डेट, क्योंकि हमको एक ईल्ड का अनुमान हो जाता है बोथ ड्राई ईल्ड एंड ड्राई बायोमास, तो फिर अब हम एक हार्वेस्ट डेट का भी प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ये सारा का सारा जो काम है वो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से हो सकता है और हो रहा है। ओके, सो दीज आर द हेड्स इन विच हाउ वी आर यूजिंग सैटेलाइट क्रॉप मॉनिटरिंग। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड डिजीज अलर्ट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग जब किसानों को ग्राम सभा में जाते हैं तो बोलते हैं सर मेरा तो 5 एकड़ का खेत है, मैं तो रोज घूमता रहता हूं, आप मुझे क्या बताओगे कि क्या कीड़ा लगने वाला है, मुझे दिख जाएगा। एंड ही इज राइट।
जब क्रॉप में दिखने का स्टेज आएगा उसको दिख जाएगा, लेकिन एक स्टेज होती है उसको बोलते हैं हिडन हंगर। ये वो स्टेज है जो हम बोल रहे थे कि हमारी ईल्ड पर हेक्टेयर या पर एकड़ विश्व के हिसाब से आधी भी नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी क्रॉप इस हिडन हंगर स्टेज में रहती है। मुझे आज कुछ लोग बोल रहे थे कि मुझे तो क्रॉप बड़ी अच्छी दिख रही है, पर आप तो उसमें फिर भी गलतियां निकालते हो, क्योंकि ये जो हिडन हंगर टाइम है वो हमें आंखों से नहीं दिखता है, क्योंकि इट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। हमने स्पेक्ट्रम सुने हैं, NIR, SWIR, ये उस स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है हिडन हंगर। तो भले ही किसान खेत में रहेगा, वो घूमता रहेगा, पर ये जो पार्ट है उसको नहीं दिख पाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जब इस सिम्टम वाले पार्ट में आएगी तभी उसको दिखेगी। एंड वी हैव मैप्ड अराउंड 7,500 acres in last about 6 months. We have not seen any top yield till now. 90% we have seen crops in this symptom stage, and about 10% in the hidden hunger stage. So that is the state of affairs of our crops today. The same thing, hidden hunger is also valid for orchards, that it is also valid for the fruit crop. So briefly I'll cover the indices because ये मुझे डाउट कई लोग पूछते हैं कि सैटेलाइट का एक्यूरेसी क्या है। सैटेलाइट का जो फंडामेंटल्स हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टी स्पेक्ट्रल एनालिसिस, जो करीबन 8 से 9 बैंड में होते हैं, फंडामेंटली बड़े क्लियर हैं कि जो हमें रिफ्लेक्टेंस मिल रहा है उसका एनालिसिस हो रहा है। तो ये क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए बहुत एक्यूरेट है। वेजिटेशन हमें दिख जाता है कि कहां पे ज्यादा हरा है, कहां पे कम हरा है। तो इस वाले मैप में ये 25 एकड़ का खेत है हरदा के किसान का, हमको दिख रहा है कि डेंस वेजिटेशन कहां पर है, कितने परसेंट है, मॉडरेट कितना है, स्पार्स कितना है। और जो ये खेती हुई है वो यहां पर इसमें मूंग लगाई हुई है, और यहाँ लाल में अभी कुछ नहीं लगाया हुआ है। तो मैं सिर्फ ये एरिया है जहां मूंग लगाई है उसकी अभी बात कर रहा हूं। नाउ ये है क्लोरोफिल। जैसे आज सर ने बताया कि नाइट्रोजन बहुत इजी है स्टैब्लिश करना। उसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन का इंडिकेशन हमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से मिल जाता है। अब आपने देखा वो कितनी ग्रीन थी वेजिटेशन में, और यहां पे उसकी हालत देखी क्लोरोफिल में, ठीक है। जो 37% अच्छा वेजिटेशन दिखा रहा था, सिर्फ 16% हेल्दी क्रॉप है। ओके, अब आप देखिए NDVI और RECI, इन दोनों इंडेक्स में आपको ये दिख रहा है कि मेरी फसल जो बहुत अच्छी दिख रही थी मुझे आंखों से, किसान बोल रहा है ना मेरे को तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन उसकी क्लोरोफिल का ये हाल है, RECI। सो 37% से कहां आ गई, 16% क्रॉप अच्छी है, यानी कि यहां पर डेफिशिएंसी है। फिर हम क्या करते हैं, मॉइस्चर से उसको कंपेयर करते हैं कि डेफिशिएंसी क्यों है। पानी तो नहीं हो सकता कि पानी नहीं पहुंच रहा हो, पानी देख लिया आप, पानी सही से पहुंच रहा है, बीच में एक दो जगह पानी नहीं पहुंच रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है, स्लोप, एलिवेशन, ऊंचा नीचा है। अगेन द सैटेलाइट विल टेल यू कि यहां पर ऊंचा नीचा है। सो अगेन प्लीज take out from your mind that the satellite imagery is not good. It is pretty good, it is pretty accurate. For satellite crop monitoring, it's almost about 80 to 90% accurate. If you take action on that advice which satellite gives you. Now, बीजों के बारे में हमने आज बहुत डिस्कशन किया. Lot of institutes are there who are taking out seeds for all crops. MSAVI ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसको हम सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स बोलते हैं, और ये हम तब यूज करते हैं जब क्रॉप शुरू के 15 दिन से 1 महीने की होती है। अगर मैंने 50 एकड़ में 10 तरह के बीज लगाए हैं और मैं 10 खेतों को बार बार मैप कर दूं, तो मैं, और उसमें अगर हर बीज का मुझे अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं इस इंडेक्स से बता सकता हूं कि मेरा ये बीज अच्छा था, इस बीज ने मुझे अच्छी उपज दी है, इसका स्प्राउटिंग अच्छा हुआ है। नाउ दिस व्हाट आई एम कवरिंग इज ऑल बाय multi-spectral analysis. I have not come to hyperspectral till now. This is only covering 8 to 9 bands. Another thing, NDRE, again the late stages of crop. Today we were discussing that how do we judge the crop losses. Now this is the index which is perfect for judging crop losses. मैं अगर अपनी NDRE को लास्ट 1.5 महीने में देख रहा हूँ, इट इज अ रेड एज इंडेक्स, ये लेट स्टेज ऑफ क्रॉप में यूज होती है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी ईल्ड कितने आने वाली है और मेरा हार्वेस्ट डेट कब है। और इसके बीच में अगर कोई इवेंट हो गया, बाढ़ आ गई, पाला पड़ गया, ओले पड़ गए, तो मुझे चेंज डिटेक्शन दिख जाएगा। 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में अगर 15 तारीख को कोई इवेंट हुई है, तो 10 तारीख को मेरी NDRE ये बता रही थी और 20 तारीख को ये बता रही है, तो मेरा परसेंटेज क्रॉप लॉस मुझे दिख जाएगा। देर इज नथिंग टू से कि एक्यूरेट नहीं है, इट इज प्रेटी एक्यूरेट. At least it is more accurate than what we are doing manually.
and it gives, again, everything comes in percentages. And if I put, instead of percentage, if I put the hectare, and if I feed the hectare land of the farmer, it will come in hectare also, कि उसकी क्रॉप कितने हेक्टेयर में खराब हुई है. Okay, now we discuss about VRA maps, variable rate application. I'll just briefly cover on that. Nitrogen map. Now we can generate zone wise nitrogen map. मुझे इस जोन में इतनी आवश्यकता है, जहां पे डार्क ग्रीन है वहां पे सब कुछ सही है, लाइट ग्रीन में थोड़ा उससे कम प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां है, जहां लाल और पीला और ऑरेंज है. इसको बोलते हैं वेरिएबल रेट एप्लीकेशन मैप. ये भी हमको सैटेलाइट से मिलता है, अगेन बेस्ड ऑन द वेरियस इंडिसेस दैट वी आर यूजिंग. पीएनके मैप. पीएनके मैप को हमें हिस्टोरिकल डेटाबेस से निकालना पड़ता है. जैसे आज सर बता रहे थे कि ये जो दो पीएनके हैं थोड़ा डिफिकल्ट हैं, तो हम क्या करते हैं पीएनके मैप के लिए, हम उसको फिर एक साल के लिए नहीं निकालते हैं, उसको हम 3 से 5 साल का एक हिस्टोरिकल डेटाबेस निकालते हैं. और जब हम हिस्टोरिकल डेटाबेस निकालते हैं तो पीएनके भी लगभग 80 to 90% हमको ठीक ठाक मिल जाता है. आर रीडिंग, we can save urea spray by about 30% and the DAP and the SSP spray by almost 60% if we use the VRA maps. Okay, now the soil health. So have a look at this map. This is the state of our soil. (1950) में नाइट्रोजन की बहुत कमी हुआ करती थी और 2020 तक हम ऑलमोस्ट हर न्यूट्रिएंट पे इस हालत में पहुंच गए हैं. जो लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड के, हमको पता होगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सबसे डिफिकल्ट होता है. अमंग द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन को फिक्स करना इतना इजी नहीं है. मतलब नाइट्रोजन पड़ा रहेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है तो वो कितना रूट में पहुंचेगा हमें पता नहीं है. तो 1950 में हमारी दशा वही थी कि हमारे पास नाइट्रोजन की कमी थी. पर बाय 2020 वी आर ऑलमोस्ट लैकिंग इन एवरी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. So with this as a background, satellite, what it gives us? It gives us SOC maps with a timeline. What we do on ground, as I told you, we save our sampling effort. हमने ये मैप निकाला, वेजिटेशन मैप या SOC मैप, जहां पर लाल है वहां हमने पिन डाला, वहीं से सैंपलिंग उठाई, वहीं से सैंपल प्रिपेयर किया. बट उसके बाद उसको हम एक फिजिकल टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें किसान को बेजल डोज देनी है. सैटेलाइट के ऊपर हम बेजल डोज नहीं बना सकते. देन वी डू अ फिजिकल टेस्टिंग. इट्स अ केमिकल रेजेंट बेस्ड टेस्टिंग एंड वी गेट ऑल दीज पैरामीटर्स, अबाउट 15 ऑफ देम. नाउ वी आर empowered to make a basal dose and also a nutrient advisory for that crop. So this is how we do it. Action on ground, you use satellite, but thereafter do a physical testing. By satellite, I have saved my laborious manpower to draw samples. Okay, now the soil regeneration. The another important part which I want to talk about the regenerative agriculture is carbon credits. हमने उसके बारे में बहुत सुना है. भारत सरकार अब ग्रीन क्रेडिट्स ला रही है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी को यूज करके हम जो इनिशियल डिजिटल मेजरमेंट है, DMRV प्लेटफॉर्म होता है कार्बन क्रेडिट के लिए, जो DM जो स्टेप है वो हम सैटेलाइट से कर सकते हैं. व्हाट वी कॉल इट बेसलाइन मैप. तो हम सेम एफर्ट करते हैं, बड़े एरिया से सिर्फ 4 सैंपल उठाए और उसकी फिर हमने मॉडलिंग कर दी, और मॉडलिंग से हमको एक 3D मैप मिल जाता है और ये 2D मैप है. और हम जैसे जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, हम जैसे जैसे जमीन पे काम करेंगे, वैसे वैसे हमको सेम मैपिंग फॉर्मूला से इंप्रूवमेंट दिखने लगते हैं. एंड देन वी कैन डू कंप्लीट द DMRV प्रोसेस. पहला साल हम बेसलाइन मैपिंग करेंगे, दूसरा साल हम उसको इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, तीसरा साल उसको हम रजिस्टर करके वेरीफाई कराएंगे, एंड देन वी कैन गेट द कार्बन क्रेडिट्स. इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. To make this carbon credit reach the farmer is a difficult work to do, but it can be done if you plan it in that manner that you use satellite technology, use FPOs का contiguous areas. FPO का बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है कि आप 2000 एकड़ 3000 एकड़ एक साथ किसानों को इकट्ठा करिए, उनकी मॉडलिंग कराइए और उनको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर करा के और उनको कार्बन क्रेडिट को दिलवाइए. This can be done, but it has to be done either through PACs or through FPOs. Okay, now the water management. Now we spoke about water management. This is the state of our country in terms of exploited areas. Whatever is in red, yellow, blue is more or less critical. So now what do we do about it? Groundwater is the world's largest freshwater source.
हम क्या सोचते हैं कि नदियां, लेक्स वो फ्रेश वाटर सोर्स हैं? नहीं, उससे 60 से 100 गुना सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर। तो ओनली वे वी कैन डू इज टू डू मैनेज ग्राउंड वाटर। सैटेलाइट से हम क्या कर सकते हैं? एलिवेशन मिल गया, स्लोप मिल गया, मुझे पता है पानी किधर से किधर बहेगा, ये तो मैं करूंगा इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद मॉइस्चर मैप मिल गया ड्यूरिंग क्रॉप मॉनिटरिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस हाइड्रोलॉजी मैप एंड हाइड्रोजियोलॉजी मैप। ये आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो हाइड्रोलॉजी मैप है। वाटर कैचमेंट मेरा कहां से कहां आ रहा है, मतलब कि अगर इस एरिया में बारिश होती है तो पानी कहां से किस डायरेक्शन में बहेगा। हाइड्रोलॉजी मैप निकाल के मैं किसान को यह बता सकता हूं कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है तो पिट वेल कहां बनाना है। लेकिन अगर मुझे ग्राउंड वाटर पे काम करना है तो ये आप जो 24 जो डब्बे देख रहे हैं, 1130 एकड़ का लैंड है कोडमलेसर बीकानेर का, जहां हमने सर्वे कराया था। तो मुझे 45 पॉइंट्स में जियोलॉजिकल सर्वे करना पड़ेगा टू एक्चुअली फाइंड आउट वेयर आर द एक्विफर्स। It is not an easy task to do groundwater management. It's a difficult task to do it. If we can do it, that is the only way we can manage groundwater. Okay, now the tech upgradation that we are doing at Modern Village Foundation, we are shifting from multispectral to hyperspectral. We can do crop classification, what you see on the left side. We can do tree classification. We can count the number of trees. We can see कि कहां पर deforestation हुआ है, कहां पर पेड़ कम हुए हैं। ये चीजें पॉसिबल है बिकॉज योर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी इज अराउंड 135 बैंड्स। जो मैंने आपको अभी तक इमेज दिखाए थे वो 8 से 9 बैंड में दिखाए थे। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 135 बैंड्स, मच बियॉन्ड विजुअल रेंज, ब्रोकन डाउन इनटू वेरी वेरी स्मॉल बैंड्स। यू कैन सी मच मोर देन व्हाट वी वर एबल टू सी इन मल्टी स्पेक्ट्रल। सो ऑल दिस टेक इज अवेलेबल, ऑल दिस इज पॉसिबल। अनदर थिंग वी आर डूइंग इज हाउ डू वी डू VRA। अब मुझे वेरिएबल रेट एप्लीकेशन में कैसे करूंगा? सर ने दिखाया था कि मैं एक सेंसर लगा दूंगा, वो सेंसर चलता रहेगा और मेरा स्प्रे होता रहेगा, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है बिकॉज योर सेंसर हैज टू बी वेरी एक्यूरेट, इट हैज टू गिव द मैसेज टू द स्प्रेयर। व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव द सैटेलाइट इमेजरी, लोड इट फर्स्ट, लोड इट इन योर ड्रोन और लोड इट इन योर AGV। दिस AGV, दिस इज पिक्टोरियल जो हमारा बन रहा है वो ऐसा नहीं है, अगले 1 महीने में रेडी हो जाएगा। हम लोग एक ऐसा AGV बना रहे हैं जिससे बहुत सारी चीजें हम एक साथ कर पाएंगे और उसमें हम ये सैटेलाइट के जो VRA मैप्स है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक अलग से एक और उसमें PCB लगेगा जिसके थ्रू हम इन मैप्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे। सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग इट इन द ड्रोन्स, ताकि जहां पर मेरा लाल है, हाउ डू वी कंट्रोल इट? वेरिएबल रेट फ्लो। जहां पर डार्क ग्रीन है वहां अपने आप फ्लो मीटर बंद हो जाएगा, जहां पर लाल है वो सबसे मैक्सिमम फ्लो वहां पर होगा। So this is another ongoing project that we are doing. So this is just a collaboration span as to what we are doing at Modern Village Foundation. We are very happy that we are integrating with IIT Indore. We are incubated here. We are also integrating with space tech organizations. We are working with ISRO. Vedas एक बहुत अच्छा analytics platform है. But again, you go to Vedas, उसमें 12-13 सब menus हैं. कहीं कुछ हमको ग्राफ मिलता है, कहीं कुछ टेबल मिलती है, कहीं पाई चार्ट मिलता है। व्हाट वी आर डूइंग इज कि उन सब इंफॉर्मेशन को, जो बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, हम कन्वर्ट करेंगे किसान को कैसे देना है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग विद इसरो। होपफुली अनदर 2 months we'll do a lot of modeling in terms of vegetation. We are working with B2B companies, green energy companies. जो बताया था, what Neeraj was asking about accuracy of weather. Right now our accuracy is about 9.2 kilometers बारिश के लिए, prediction के लिए. With ISRO will bring it down to 4 to 5 kilometers. That is what ISRO has told us कि जो उनका जो weather update है वो हमें 4 से 5 किलोमीटर मिल जाएगा. This entire platform also gives you, all the finance companies, a lot of information to do your crop insurance, to even check the credibility of a farmer. हमको पिछले 5 साल का डेटाबेस मिल जाता है कि इस खेत में क्या क्या हो रहा था. हम लोग 5 साल का यील्ड नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको क्रॉप का नाम और सोइंग डेट नहीं पता थी, लेकिन 5 साल का हम सारे इंडेक्स देख के कि वो बैरल लैंड तो नहीं था, हम ये बता पाएंगे. तो फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. Farmer FP organizations, we keep doing Gram Sabha. We are going to different districts and trying to educate about this technology. The response is good. It will take time. Maybe we are doing at a time when these things have not happened earlier, but we are at it.
एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. आई थिंक कल यहाँ पर लोग आएंगे, सह्याद्री फार्म्स, जैन इरिगेशन, जिनको टेक्नोलॉजी मिल चुकी है और वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, एंड दे आर द शोकेस ऑर्गेनाइजेशंस टू शो अस दैट हाउ टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली बेनिफिट फार्मिंग, और हम अपने प्रोड्यूस को क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज कैसे बढ़ा सकते हैं. सो वी आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद देम फॉर स्केलिंग अप देयर ऑपरेशंस. अभी ये सारी कंपनीज IoT बेस्ड डिवाइसेस पे काम कर रही हैं. व्हाट वी आर सेइंग इज कि लेट अस स्केल अप यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. A lot of grassroots partners, Udyogni CEO ma'am is there. We have worked with them. Though very small scale farmers, we could not live up to the expectation because small scale farmer एक ही एकड़ में 3 चीजें लगा दी. उनका मैपिंग करने में हमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि 3 लाइन में भिंडी, 3 लाइन में बैंगन. तो we could not support them as much, but we are trying to do our best. EdTech innovators is what we are collaborating. And other tech is what I was talking about, the feedback system. कि जो हमें ग्राउंड से फीडबैक मिलता है, that we should be able to give it back to the institutions to develop tools. What I was saying, this is our Indore office where we established a tech center. इसी का रेप्लिका हम SVC में बनाना चाहते हैं हर क्लस्टर में. यहाँ पर हम शुरू की ब्रीफिंग करते हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ. उसके बाद ग्राउंड पर जाकर के जो हम सेंटर बना रहे हैं वहां एक ब्रीफिंग होती है, अगेन ट्राइंग टू एजुकेट द टेक्नोलॉजी. और उसके थर्ड पार्ट इज टू ब्रीफ ऑन ग्राउंड, ब्रीफ फार्मर्स ऑन ग्राउंड. This year we got award as the best rural startup at IIT in month of March. So that's it. I am open to questions, and this is our model, and this is how we are working.